So apart from getting 11th rank in GATE, Yeah. I got All India rank 1 in UPSC JEE All exam. India rank 1, seriously? Yeah. In UPSC? JEE examination. That is a non-tech examination, not a Okay. civil services. Okay. And I got 99.4 percentile in CAT Oh my this god. year. Offers from companies like NVIDIA waiting for me and this startup waiting for me. So I love taking risk. मुझे रिस्क लेना बहुत पसंद है एंड एवरीथिंग. अगर आपको कुछ बड़ा करना है लाइफ में तो आपको रिस्क लेना ही पड़ेगा. इफ यू टेक रिस्क यू विल गेट गुड रिजल्ट्स. What is the reason for joining IIT Madras? So you अच्छा, just आपने सेल्फ स्टडी से AIR 11 yes absolutely. तो what are the books did you follow during your preparation, अगर आप बताना चाहो? सेम चीज आज हो रही है AI के साथ. अगर आप AI को नहीं सीखोगे, उसको काम में लेके नहीं आओगे तो आपकी जॉब खा लेगा. एंड करेंटली वी आर वैल्यूड एट 25 CR एंड ये मेरा विजन है कि अगले साल तक मैं इसको एक यूनिकॉर्न क्रिएट करूँ. हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल. आज है हमारे साथ आईटी मद्रास के एक बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड स्टूडेंट जिन्होंने आईटी बॉम्बे को छोड़ के आईटी मद्रास को ज्वाइन किया. तो हमारे साथ हैं आज सानिध्य चतुर्वेदी. सो कैन यू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ? Hi. So, hello everyone. First of all, thank you Prashant for having me here. We were planning this since very long, but finally it happened. So, my name is Sanidhya Chaturvedi. I'm final year student, Electrical Engineering Department, IIT Madras. And yes, I joined IIT Bombay before, but I left it and then joined IIT Madras, which we'll discover why that happened and what my journey has been. So currently I'm also co-founder and CEO of my startup Folium Sensing Private Limited. And yes, this is how I'm going. तो ये इंटरव्यू बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है. अगर आप गेट एस्पिरेंट हो तो लास्ट तक जरूर देखना. तो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हेन डिड यू डिसाइडेड यू शुड प्रिपेयर फॉर गेट? So see, GATE examination is a type of examination in which it opens multiple doors for you. For example, government jobs, PSUs, MTechs in IITs, MTechs and PhDs. Apart from that, many institutes are accepting as a professors also. So this examination is a gate for opening of lot of opportunities. So when I was in my third year, I decided to give an attempt about this because electrical engineering is a core subject. Exactly. Around 1 lakh aspirants they appear. So it was a decision to be taken because on the one hand we have placements and then we focus on GATE examination. Okay. So along with my placement, I did my self preparation and I got All India rank 11 in electrical engineering. So you got 24. All India rank 11. Yeah. In 2020? 24. 24. Oh, that's great. क्या आप भी गेट 26, 27, 28 या ESC की तैयारी कर रहे हो तो आप PW के विजय श्रेष्ठ और पराक्रम बैच में डिस्काउंटेड प्राइस पे इनरोल कर सकते हो, जिसमें आपको ये सभी बैचेस डिस्काउंटेड प्राइस पे मिल जाएंगे. और हाँ, एक न्यू बैच लॉन्च हुआ है, मेधावी गेट 27. मेधावी ESC प्लस गेट 27 रजिस्ट्रेशन इज अ लिमिटेड एनरोलमेंट बैच टेलर्ड फॉर स्टूडेंट हु वांट टू स्टडी विद फोकस्ड मेंटरशिप एंड इंडिविजुअल अटेंशन. नाउ आल्सो एक्सपीरियंस इनफाइनाइट लर्निंग विद बैच इन्फिनिटी फ्रॉम PW ऑफरिंग गेट खजाना, PYQ book, test series, practice workshop, access to super 1500 batch, closed group with faculty and more. और ये तो कुछ भी नहीं, अगर हम गेट 25 का रिजल्ट देखें तो PW के स्टूडेंट ने टॉप रैंक स्कोर की है. Core feature of these batches are lecture plan and test plans has been uploaded in the batch notice section. Classes will be conducted from Monday to Friday. MCQ, MSQ, and it is type of question aligned with the gate pattern. Topic wise practice sheet will be provided. Live discussion will be there for the practice sheet. The doubt engine will be there for solving the student queries and doubt. Regular tests will be conducted. PYQ's quiz format will be provided with video solution for relevant subject. Question aligned with ESC and gate pattern. और हाँ, अगर आपको इन सभी बैचेस पे एडिशनल 500 रुपीज का डिस्काउंट चाहिए तो मेरा कूपन कोड PRS 500 यूज करना मत भूलना. So guys, without wasting time, let's start the video. So like when did you decided you should prepare for GATE exam and how much time did you take for this examination? Okay, good question. तो GATE examination जो है, see it is one of its own kind. Yeah. Because बहुत सारे subjects होते हैं, you have to study full engineering, it's not easy. Exactly. And most people जो होते हैं, most लोग they prepare in the final year. Means they have the projects, they have placements, and then they have the burden of preparation. Okay. So I started preparing this. I started giving 4 hours per day from my third year itself, Okay. along with the college. So mostly, most of the engineering subjects, what happens is that the major subjects होते हैं, वो third, fourth year में start होते हैं. Exactly. तो ये best recommendation है कि आप क्लास के साथ ही गेट की क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करें. बिकॉज द ब्यूटी ऑफ गेट इज कि एक क्वेश्चन में आपके पास 5-6 कॉन्सेप्ट टेस्ट होंगे. Exactly. And that is how it becomes a very difficult exam to crack. That is It how is the like competition one is. of the toughest exam among top 5 examinations. Yes, like absolutely. 5th number पे आता है ये. Yeah, definitely. So that is why it makes it a very tough examination.
और इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप स्मार्ट स्टडी करें। Exactly. इसीलिए हमेशा मैं सबको प्रेफर करता हूँ कि ऑलवेज यूज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, बिकॉज दे टेल यू हाउ एग्जामिनेशन इज गोइंग टू बिकम, पेपर कैसा आने वाला है, पैटर्न कैसा आने वाला है। अगर आपको उसका की चाहिए, आपको चाबी चाहिए एग्जाम क्रैक करने की, तो दो चीज़ है आपके पास। एक, आप सिलेबस का सब टॉपिक कवर करने की कोशिश कीजिए, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से समझिए कि कैसे पैटर्न के क्वेश्चन आ रहे हैं, क्योंकि पैटर्न कभी चेंज नहीं होगा, पैटर्न रिपीट होगा। और यही डिफरेंशिएट करता है एक स्मार्ट एस्पिरेंट और एक हार्ड वर्किंग एस्पिरेंट्स में, बिकॉज बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो 3-4 साल प्रिपेयर करते हैं, देन दे एंड अप डूइंग नथिंग। तो बी स्मार्ट एंड मेक अ राइट चॉइस। ओके, तो आपने बताया कि आपका AIR 11 था। तो आपने बीटेक कौन से ब्रांच से किया था? इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। और वही अभी आपने एमटेक भी किया? यस। तो मेरा सबसे पहले क्वेश्चन है कि व्हाई डिड यू चूज IITs ओवर ISC बैंगलोर? ओके, वेरी गुड क्वेश्चन। सो I'll quickly tell कि हुआ क्या था। तो ISC बैंगलोर, इट्स नो डाउट वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट्स फॉर रिसर्च एंड ऑल। मैंने वो चूज़ क्यों नहीं किया? बिकॉज आई हैड दिस पर्सनल टच, लव, जो टच IITs में है, टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूट्स में है, वो मुझे बहुत ज़्यादा रिसर्च उसमें ओरिएंटेड फील्ड में नहीं जाना था। तो आई वांटेड टू गो इन दिस फील्ड, एंड इन एडिशन टू दैट जनरली व्हाट हैपेंस कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का कट ऑफ थोड़ा सा मद्रास का हाई जाता है बॉम्बे से। ठीक है, तो दिस इज वन ऑफ द फैक्ट्स which people don't know. So I joined IIT Bombay. I got hostel allotment also. 1 month I left. Hostel 17. Yeah, I got at 17 hostel. Everything was done. Guys, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बता दूं, ये वीडियो भी IIT बॉम्बे में शूट हो रही है। उनका यहाँ पे कोई मीटिंग था, इसलिए वो मुंबई आए थे। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इंटरव्यू ले लूँ, क्योंकि IIT मद्रास से, मैं IIT बॉम्बे से। तो मैं ज़्यादातर जो इंटरव्यूज़ लेता हूँ IIT बॉम्बे के बच्चों से लेता हूँ, बट अभी मैं ले रहा हूँ IIT मद्रास के बच्चे का। तो अभी हम लोग हॉस्टल 14 IIT बॉम्बे में इंटरव्यू ले रहे हैं। Yeah, so it's jamming session here in H14. Yeah. So yes, finishing this thing. So after that, in the next round, the spot round, I applied, and then I got IIT Madras, that is VLSI. So you left IIT Bombay. Yeah, then I left IIT Bombay and joined Madras. See, one more thing. Every institution, all the old IITs are of same level. We should never. Why did you leave IIT Bombay? Yeah, that is the thing, because the research and the level of advancements in electrical department in IIT Madras, which I have found, it's quite on a higher side in that. If you compare branches like CSE, तो CSE में Bombay is no doubt always higher than, but electrical department, the work culture and the research level is quite higher in Madras. That is why I choose. But anyways, in the end, all the old IITs are same. But it depends on my knowledge, as I know, IIT Bombay electrical engineering also one of the top. Yes, I don't know, one of the tops. All the IITs, there no differentiation. It was my personal choice to go from here. Yeah, from there. Yeah. तो आपका AIR 11 आया, आपने IIT बॉम्बे में एडमिशन लिया, देन उसके बाद आपको IIT मद्रास का अच्छा लगा, तो आपने यहाँ छोड़ के वहाँ चले गए। True. ओके, तो अभी हम आगे बढ़ते हैं कि आपको जो, सो कैन यू डिस्क्राइब द एकेडमिक कल्चर एट IIT मद्रास? या सी, IIT मद्रास में जो एकेडमिक कल्चर है बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल हो गया है। तो जो हमारे डायरेक्टर हैं प्रोफेसर V कामाकोटी, वो इसी विजन के साथ आगे बढ़ रहे हैं कि जितने तरीके से हम स्टूडेंट्स को इंटरडिसिप्लिनरी नॉलेज प्रोवाइड कर सकें उतना अच्छा है। अगर बीटेक्स की बात करूं तो फॉर एग्जांपल सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट कैन टेक CSE कोर्सेज एंड मोर फ्लेक्सिबिलिटी इज देयर। सिमिलरली फॉर एमटेक्स ऑल्सो, इन एमटेक्स में हमारे पास होते हैं स्पेशलाइजेशंस होते हैं। तो एक तरीके से जो रिस्ट्रिक्शन होती है कि ये स्पेशलाइजेशन का बंदा, फॉर एग्जांपल अगर मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की बात करूं तो देयर इज स्पेशलाइजेशन कॉल्ड VLSI एंड समथिंग कॉल्ड पावर इलेक्ट्रॉनिक्स। तो ऐसी कोई बाउंडेशंस नहीं रह गई है। आप चाहो तो आप एनालॉग का कोर्स जो कि इस स्पेशलाइजेशन में नहीं आता आप कर सकते हो। तो ये जो करिकुलम है वो काफ़ी फ्लेक्सिबल है। बट ऑन द अदर हैंड बाकी IITs के जैसे ही IIT मद्रास में भी वी हैव अ वेरी हेक्टिक कोर्स स्ट्रक्चर, and every time you will be occupied in the classes, labs, and TA duty projects, and yes, you have to give your best, and in the end third semester aate you will get to placements. Okay, that's right. Okay, so how hectic the TA duty was? See, TA duty हमेशा ही hectic होता है. You have so many doubts coming in. एक semester में तो I had 2 courses TA duty. It was very hectic for me to manage, मेरा course manage करना और TA duty manage करना. तो आसान नहीं होता है. But yes, anyways, mid-sem question papers, doubts of students, and all of these things. Apart from that, IIT Madras and all of these old IITs, they hold NPTEL courses also. Exactly. So sometimes you have to go for that also. So yes, it's all a juggling phase here and there. But anyways, इसी सब के बीच आपको अपने राह देखना है. You have to find a path, and that is what सब लोग कर रहे हैं, हम भी कर सकते हैं. Yes, everywhere. Yeah. तो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको
मतलब जिनको प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिलता है, जो प्रॉपर ऑफलाइन कोचिंग में नहीं जा सकते हैं, Yeah. तो कोई बच्चा अभी अपने बीटेक फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में है, तो उसको अगर प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है गेट की, तो आप क्या सजेस्ट करोगे कैसे स्टार्ट करें जिससे वो आपकी तरह अंडर 100 या 100 500 1000 में रैंक लेकर आए गेट में? परफेक्ट, वेरी गुड क्वेश्चन प्रशांत। तो इस पे मैं बहुत अच्छा एक प्यारा पॉइंट ऐड करना चाहता हूँ Yeah. कि मैं चाहता हूँ कि गेट एग्जामिनेशन हर इंजीनियर के लिए कंपलसरी हो जाए। अच्छा, कंपलसरी? या दिस इज माय जैसे पर्सनल मेडिकल में कुछ कंपलसरी किया कंपलसरी गया किया है कि गया हाँ, बिकॉज कि दिस PG इज आपको करना ही करना है। एब्सोल्युटली, बिकॉज दिस इज एन एप्टीट्यूड टेस्ट, ये आपका एप्टीट्यूड टेस्ट करता है। बट यस, कमिंग बैक टू हिज क्वेश्चन, तो जितनी जल्दी आप स्टार्ट करेंगे उतना अच्छा है। दैट इज ऑलवेज विल बी इन एज, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, आज वी हैव कट थ्रोट कंपटीशन बिकॉज you don't need to go Delhi or anywhere, everything is available on your fingertips in your mobile phone. So second thing is this. Third thing, मैं रिकमेंड करूंगा कि आप शुरुआत से ही जो सब्जेक्ट आपका चल रहा है फर्स्ट ईयर में आप एंजॉय करिए, बिकॉज यू गेट ऑल द मिक्स सब्जेक्ट्स एंड ऑल। मतलब जो बीटेक के जो सब्जेक्ट्स होते हैं वो Yeah. भी उसमें इतना सिलेबस होता है कि आपका गेट उसी से हो जाएगा अगर आपने Absolutely. अच्छे से पढ़ा होगा। यस एब्सोल्युटली, बट एक वर्ड यूज करूंगा, स्मार्ट। हाँ, स्मार्ट, आपको बहुत स्मार्ट बनना है। फॉर एग्जाम्पल, देयर इज सब्जेक्ट कॉल्ड एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स, so something, or for example say C++, any subject is there, DSA is there for example. Yeah. तो अगर क्लास में आपके चल रहा है, आप पैरेलली क्या करो, गेट के कुछ लेक्चर्स देखो, बहुत सारे फ्री कंटेंट अवेलेबल है। मैं कह रहा हूँ कि सोना पड़ा हुआ है यूट्यूब पे, सोना पड़ा हुआ है। लेकिन एक कहावत है कि जिसको फ्री चीज की देयर इज नो वैल्यू ऑफ फ्री स्टफ्स। वो होता है ना, जैसे अभी हम जिम जा रहे हैं, Yeah. अभी हमें आईटी बॉम्बे में सब कुछ मिला हुआ Yes, है, yes, obviously. नहीं जाते, बट मतलब टाइम नहीं मिलता है। Yes. बट वही मैं अगर पैसे देके 2000 रुपये फीस देके जा रहा था तो मैं एक भी दिन जिम नहीं छोड़ता। Obviously. लेकिन अभी फ्री है तो उसका हाँ. वैल्यू नहीं है। तो अब एक काम करिए, यू पे प्रशांत, ही गाइड यू फॉर दैट, द बेस्ट मॉडल विल बी नो देयर। नीड टू पे मी। तो अगर कोई बच्चा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से अगर Yeah. प्रिपरेशन करना चाहता है तो क्या वो अच्छी रैंक को अचीव कर सकता है? Absolutely. See, I did self study only. So you अच्छा, just आपने सेल्फ स्टडी से AIR 11 yes, को absolutely. I only took test series from different coaching. तो टेस्ट सीरीज आपको लेनी है, क्योंकि इन द एंड टेस्ट आप नहीं लगाओगे, आप अगर घर में फेल नहीं करोगे, बार बार फेल नहीं करोगे, तो आप रैंक नहीं लाओगे। तो प्रिपरेशन, टेस्ट सीरीज इज वन ऑफ द मेजर फैक्टर फॉर प्रिपेयरिंग एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली, एनी एग्जाम यू टारगेट, तो वो बताएगा कि आप किस लेवल पर हो। एब्सोल्युटली, जो टेस्ट सीरीज होता है वो बताता है कि आप किस लेवल की पढ़ाई कर रहे हो, Yes. कितना आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, राइट? एग्जैक्टली, तो मैंने भी अपनी गेट की प्रिपरेशन में यही किया था, क्योंकि Yeah. टेस्ट सीरीज पे बहुत फोकस किया था। एब्सोल्युटली, तो जब आप टेस्ट सीरीज के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो हमारा कहीं पे कॉन्सेप्ट में लैग है, तो वो फिर से रिवाइज करते हैं, यस, तो फिर वो क्लियर होता रहता हाँ, है। ये लूप बहुत हाँ, जरूरी है। वही। अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो, जेई एडवांस, जेई मेंस, Exactly. गेट, एसएससी, एनी एग्जाम, टेस्ट सीरीज इज द की टू सक्सेस। कितना भी सिलेबस कर लो, कॉपी प्रिपेयर कर लो, जब तक आप टेस्ट नहीं दोगे, आप घर में फेल नहीं होगे 1000 बार, तब तक आप एग्जाम पे टॉप रैंक नहीं लाओगे। अगर आप इससे भागोगे तो आप कभी भी रैंक नहीं ला पाओगे। ओके, तो गेट एग्जाम के अलावा आपने और कौन कौन से एग्जाम क्रैक किए हैं, इस पे आते हैं? तो अपार्ट फ्रॉम गेटिंग 11th रैंक इन गेट, Yeah. आई गॉट ऑल इंडिया रैंक 1 इन यूपीएससी जेई ऑल इंडिया रैंक 1, सीरियसली? Yeah. In UPSC? JEE examination. That is a non-tech examination, not a Okay. civil services. Okay. And I got 99.4 percentile in CAT Oh my this god. year. I got offers from IIM ABC, Oh my god. but I All. rejected that because of my startup. तो गाइस, मतलब मैंने अभी तक बहुत सारे गेट एस्पिरेंट्स का इंटरव्यू लिया है, बट ऐसी पर्सनैलिटी जिसका ऑल इंडिया रैंक 1 गेट जेई में, ऑल इंडिया रैंक 11 गेट एग्जाम में और 99.4 4 CAT. परसेंटाइल कैट में आया, मतलब लाइक मुझे तो ऐसा लग रहा है कि वन ऑफ द मोस्ट टैलेंटेड गेट एस्पिरेंट्स whom आई एम डूइंग इंटरव्यू राइट नाउ। तो अभी ये बताइए कि गेट के साथ ये एग्जाम का कैसे प्रिपरेशन किया? See, GATE happened already. ओके, So see, this UPSC examination. So जिनको पता नहीं है, तो UPSC में बेसिकली 2 टाइप के एग्जाम होते हैं, सिविल सर्विसेज फॉर IAS IPS, और टेक्निकल में 2 टाइप के एग्जाम्स होते हैं, ESC इंजीनियरिंग सर्विसेज और AEJE के एग्जाम्स होते हैं। तो आई प्रिपेयर्ड फॉर दैट। तो जब आप प्रिपरेशन कर रहे हो गेट की, तो थोड़ा यूपीएससी का पैटर्न डिफरेंट होता है, तो आप ट्राई करिए, कोई कंपलसरी नहीं है, जो भी टारगेट कर रहे हैं यूपीएससी एग्जामिनेशन टेक्निकल के, तो ट्राई करिए कि थोड़ा सा आप थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करें, क्योंकि यूपीएससी में थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं। तो इससे क्या होगा, क्योंकि एवरीथिंग द न्यूमेरिकल पार्ट इज हैवी फॉर गेट, थ्योरी पार्ट इज फॉर यूपीएससी। अगर आप दोनों की तैयारी कर लेते हो तो वो मिक्सचर आपको राजा बना देगा, और यही तरीका था। I got offers from all the top PSUs as grade A government officer in IOCL, in other PSUs also, which I won't mention. But I then why didn't you join that? Exactly. Why didn't you join? Because I had offers from companies like NVIDIA waiting for me and this startup waiting for me. So I love taking risk.
मुझे रिस्क लेना बहुत पसंद है और मैं ये करता जा रहा हूँ आई एम लविंग दिस थिंग एंड इट इज़ प्रूविंग टू बी गुड एंड एवरीथिंग। अगर आपको कुछ बड़ा करना है लाइफ में तो आपको रिस्क लेना ही पड़ेगा। इधर इज टेकिंग अ ड्रॉप, प्लेसमेंट छोड़ना गेट की तैयारी के लिए, कुछ भी करना, इफ़ यूल टेक रिस्क यू विल गेट गुड रिजल्ट्स। ओके, तो जो आपने बताया ESC वही जो आपका Yeah. UPSC JEE में Yeah. ऑल इंडिया रैंक 1 आया, तो उसके थ्रू गवर्नमेंट सर्विसेज में Yes. जॉब मिलता है राइट? Yeah. तो वो तो बहुत सारे बच्चों का ड्रीम होता है। एब्सोल्युटली। तो वो फिर आपने छोड़ा, उसके बाद आप अपना आगे जो भी आगे हम बताएंगे वो क्या अभी करना चाह रहे हैं, Yeah. किस चीज़ में आगे जा रहे हैं, तो वो छोड़ा, मतलब बहुत सारे बच्चों का वही ड्रीम होता है। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। तो ये जब चीज़ हो रही थी तो आई गॉट ऑफर्स, मेरे घर पे पोस्ट आ रहे थे। अच्छा, असिस्टेंट इंजीनियर SDO, सीनियर डेवलपमेंट ऑफिसर इन दिल्ली, this is through this examination, grade A government officer in this PSU, okay. and management trainee in this PSU. So all of these offers were coming, but parallelly I always had a vision कि I appreciate जो भी हमको मिलता है उसको appreciate करना चाहिए, but मेरे अंदर एक हमेशा से एक विजन था कि बहुत सारी jobs create करूँ। I always wanted to build a startup, grow it, scale it, create jobs and do something for humanity. तो वो विजन मेरा था कि मैंने ये सब चीज़ को रिस्पेक्टफुली ड्रॉप किया और आगे बढ़ा। Then came the placement season, then the startup season. दैट्स वेरी ग्रेट राइट। तो जैसे कि जो हमारे अगर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का कोई बच्चा अगर ये वीडियो देख रहा है जो बीटेक में है, तो व्हाट आर दी बुक्स डिड यू फॉलो ड्यूरिंग योर प्रिपरेशन, अगर आप बताना चाहो? एब्सोल्युटली। तो बुक्स के लिए सी देयर आर सम स्टैंडर्ड बुक्स, क्योंकि हर सब्जेक्ट में, फॉर एग्जांपल कोर इंजीनियरिंग जैसे इलेक्ट्रिकल है, 3 मेन सब्जेक्ट हैं इसमें, इलेक्ट्रिकल मशीन्स, पावर सिस्टम एंड पावर इलेक्ट्रॉनिक्स। तो इसमें कुछ 3-4 स्टैंडर्ड बुक्स हैं। हालांकि अगर आप ढंग से अपना क्लासेस कर रहे हैं और आप यूट्यूब से लेक्चर्स देख रहे हैं तो आपको इसका नीड नहीं होगा। फिर भी अगर आपको बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लैरिटी चाहिए, देयर इज बुक कॉल्ड PS भीमरा, वन ऑफ द बेस्ट बुक विच यू गो, एंड वन मोर एक और बुक है दैट इज सले एंड टेक। तो ये सारी बुक्स हैं विच यू कैन गो फॉरवर्ड फॉर, बट एनीवेज ये स्टैंडर्ड बुक्स ही हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस हमारे पास कुछ सब्जेक्ट्स आते हैं, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, जिसके लिए आई थिंक देयर इज नो नीड फॉर गोइंग फॉर स्टैंडर्ड बुक्स। आई वोंट रिकमेंड यू दैट, बट lectures from some all online education platforms you can go ahead, and again gold is present in YouTube, just try to utilize that. बाकी काफ़ी सारे प्लेटफॉर्म भी ऑनलाइन, वहाँ से भी आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। Absolutely. सो हाउ डिड यू बैलेंस योर कोर्स वर्क, प्रोजेक्ट एंड पर्सनल लाइफ एट IIT मद्रास? ओके, वेरी गुड क्वेश्चन। सी मैनेजमेंट, वी ऑल, अगर हमने लाइफ में मैनेजमेंट सीख लिया तो हम सब कुछ कर सकते हैं। तो कोर्सेज मैनेज करना, उसके साथ आई हैड PORs ऑल्सो। सो IIT मद्रास में we use a term called position of responsibility. यहाँ पे भी है, मतलब here also everything is there, so that culture also, and apart from that personal life also, it was not easy to manage. But हमें एक चीज़ समझनी चाहिए कि हम जितना अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलेंगे उतना ग्रो करेंगे हम। तो मैंने day 1 से ये ठाना था कि as soon as I enter the college I have to be in the most uncomfortable situation ever. तो कोर्सेज के साथ साथ I won the student elections in IIT Madras. I was the general secretary of Mandak, and after that I was the head of Electrical Engineering Association also. Apart from that मैंने इंटर IIT के लिए भी पार्टिसिपेट किया। मैं डायरेक्ट स्ट्रीट प्ले टीम का डायरेक्टर था और उस साल IIT मद्रास फर्स्ट आया था इंटर IIT में स्ट्रीट प्ले में। तो ऑल ऑफ दिस जर्नी आई हैव टू बैलेंस, यू हैव टू बैलेंस वेरी स्मार्टली। वीकेंड्स में यू कैन स्पेंड सम टाइम, बट ऑलवेज गिव अकेडमिक्स से प्रायोरिटी, बिकॉज CGPA खराब होगा तो आपका प्लेसमेंट में इफेक्ट होगा कहीं ना कहीं। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस हमेशा ऑलवेज हैव अ पर्सनल लाइफ फॉर योरसेल्फ। योर पर्सनल लाइफ मीन्स योर फैमिली, योर फ्रेंड्स, बिकॉज यू नीड टू अपने आपको थोड़ा हल्का भी करना होता है। तो यू नीड टू स्पेंड सम टाइम विद देम, गो आउट फॉर सम मूवीज, प्ले सम स्पोर्ट्स ऑल्सो, बिकॉज ऑल वर्क एंड नो प्ले मेक्स जैक अ डल बॉय, दैट इज फॉर श्योर। तो सब कुछ बैलेंस करिए, एंड द मोर यू बैलेंस द मोर यू अनकंफर्टेबल, द मोर यू विल ग्रो। So was there any craziest thing happen in IIT Madras in your MTech? Craziest thing in what sense? Anything what do you think that is crazy? That is crazy. So I'll tell you one of the craziest thing which I learned, जिसने मुझको बहुत shape किया है. So we had these nights in IITs, na, everything. So we had our hostel night. So Mandakini hostel is the freshers hostel for all of us. All the BTechs and MTechs, they be there. I was a general secretary. So we had a barbecue night organized, and everything was on me. So and what happened in that one day itself, खाना कम पड़ गया. Okay. So what happened? The non-veg stall had lesser food, and the whole hostel was crowded like anything. And in the hostel WhatsApp group, everything was tagging me. Everything was on me. हमारे हॉस्टल में अगर कुछ भी होता है तो हम लोग वही जो हमारा मेस का है बंदा जिसको सारी रिस्पांसिबिलिटी उसी को टैग. Everything this happened. So this similar thing happened, and it went on so high on me. उसके बाद मैंने झेला ये चीज़ की प्रेशर झेलना, हाउ इम्पॉर्टेंट इट इज़ कि आप लाइफ में प्रेशर झेलो, बिकॉज थिंग्स कम एंड थिंग गो एंड एवरीथिंग हैपेंस फॉर अ रीज़न.
कोई भी चीज़ आपकी लाइफ में होती है एक रीज़न के साथ होती है, आप उससे क्या सीखते हो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो ऐसा मोमेंट है मेरी लाइफ का जिससे मैंने बहुत कुछ सुना है, बहुत कुछ सहा है। इवन एक पॉइंट था, मैंने हैव टू रिजाइन फ्रॉम दैट, बट आवर प्रोफेसर्स एंड ऑल दे स्टॉप मी फ्रॉम दैट। तो एक ऐसा फेज था लाइफ का, उसमें बहुत कुछ सीखा मैंने, और उसके बाद से आई थिंक कितनी भी डिफिकल्ट सिचुएशंस आए, आई एम एबल टू कैप्चर दैट और उससे सीखता जाता हूँ। मतलब आईआईटी आपको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे लेते हैं वो बीटेक एमटेक यहाँ पे पूरा सिखा देते हैं। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। तो इज देयर एनी डिस्क्रिमिनेशन इन बीटेक एंड एमटेक इन आईआईटी मद्रास? No, there is no discrimination. That is the beauty. In IIT Bombay, it is called Matka. Yeah, absolutely. There it is called. Yeah, Matka. absolutely. It is called. But there it is there, something internal kind of a stuff. But ऊपर में there's nothing like that. There is a very good culture. The senior junior bonding is very good. Here also, they respect to seniors also. Yeah. Absolutely. And that is how I think an institution grows collaboratively. Exactly. And we should respect each other, and that is how it grows. Yeah. Okay. So now come to the awards. Yeah. So what are the awards did you achieve in your life in IIT Madras? So see, this chapter has been so amazing for me. Okay. I got so many awards, but I got 4 national awards. 4 national awards. This year I got 4 national awards. Okay. I'll start with the first award. I got Emerging Entrepreneur of the Year award, under Okay. 25 age category from Startup India. Okay. First award. Okay. Second award, I got Google Future X Oh my award. God. So this event is all the 23 IITs, they host the event. Okay. In the 5 IITs we have regionals. Finale is in Google headquarters. So we have 10 startups, out of which all over India I came first. So this is from IIT Madras. No, this is all over Pan IIT. This event No, happens. this event happened Pan Day, but this startup. Where This is my startup itself, yeah. For my from startup IIT itself, Madras. from IIT Madras. This is my startup itself. This happened. This is the second national award. Third national award I got is this recently. I got 4 days before. I got honored with Honorable Prime Minister. Okay. That is the Youth Icon of आप the Year award. पिक्चर भेज दीजिएगा, मैं सारे यहाँ पे वीडियो में लगा दूंगा. Definitely, that is the Youth Icon of the Year award. And one more award I got was this IT Ma Sangam Pitch Fest award, in which I came first. So these are the 4 national major awards. And We have yes, achieved. yeah, we have achieved this year. Congratulations. Thank you so much. अभी थोड़ी देर में हम लोग पार्टी करने जा रहे हैं, इतना सारा Yo. अवार्ड होने के बाद. तो जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है सुनने में, राइट? सामने Yeah. सब कोई देखता है. Absolutely. बट इसके पीछे की जो एक कहानी है, जो मेहनत है, उसके बारे में अगर कुछ लाइनें अगर आप बताना चाहें, मतलब अगर इन शॉर्ट में बताना चाहें कि आप यहाँ तक जो पहुँचे, आपका स्टार्टअप, इतनी अच्छी रैंक्स आपके डिफरेंट एग्जाम में, Yeah. तो सबके पीछे का एक जो ऑब्जेक्टिव होगा वो क्या था जब आप अपने प्रिपरेशन कर रहे थे? बहुत अच्छा सवाल किया है प्रशांत। इसका आंसर क्लैरिटी से मैं लेना चाहूँगा कि देयर हैज़ टू बी वन रीज़न। ओके, एक रीज़न होता है जो हमेशा हमें सुबह उठाता है, एग्जैक्टली, जिसके लिए हम कोई चीज़ करते हैं, कोई एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी चीज़ कर रहे हैं, देयर हैज़ टू बी अ रीज़न। तो आई हैड अ वेरी क्लियर पिक्चर कि मुझे लाइफ में क्या करना है। दैट क्लियर पिक्चर जो हमारे इमेजिनेशंस पे होती है, वो हमारे हार्ड वर्क के थ्रू रियल लाइफ में आ जाती है। तो कब आई थी वो पिक्चर? क्लियर कब हुआ था कि जैसे बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं Absolutely. कि किस लाइन में जाऊं, किस लाइन में जाऊं, क्या करूं? एक मतलब एक जो स्टूडेंट होता है उसका सबसे जो डिफिकल्ट फैक्टर होता है, डिसाइडिंग फैक्टर Yeah. यही होता है कि Absolutely. कहाँ जाऊं। Perfect, तो वो perfect. आपने कैसे डिसाइड किया? परफेक्ट। तो आईआईटी में आने का मेरा एक ही मोटो था, द काइंड ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप कल्चर जो है यहाँ पे ग्रो करने के लिए। Okay. मेरा बहुत स्टार्टिंग से एक विजन था, आई वांट टू क्रिएट अ स्टार्टअप, अ वैल्यूएबल स्टार्टअप, क्रिएट जॉब्स एंड क्रिएट इम्पैक्ट नॉट ओनली इन कंट्री बट ऑल अक्रॉस द ग्लोब। तो मेरा एक बहुत प्यारा विजन था, लेकिन उस विजन को पूरा करने के लिए आई हैव टू क्रैक एग्जाम, आई हैव टू डू कोर्सेज, आई हैव टू गो थ्रू अ लॉट ऑफ थिंग्स, एंड दिस प्रिपरेशन फेज इज नॉट ईजी बिकॉज again 1 लाख बच्चे अपीयर करते हैं इन एग्जाम्स में, and so many cutthroat competition is there, and even one small mistake, so I like to tell you, 2 क्वेश्चन पे मेरा पॉइंट का मिस्टेक हो गया। फर्स्ट मिस्टेक वाज आंसर वाज 0.25, I wrote 0.025. सेकंड का आंसर था 1.2, I wrote 1.3 in that, some basic mistakes, otherwise I was already rank 1. So these 2 questions, so basic mistakes. तो वही मेरे टाइम में भी ऐसे था कि अगर 0.3 0.2 पे मतलब ऐसे 50-50 रैंक का डिफरेंस आ रहा था। Yeah, it happens when as soon as you go close, these small marks create a difference. तो मतलब यू हैड डिफरेंट ऑब्जेक्टिव कि उसके लिए आपने ये सारे एग्जाम किए। Absolutely. बाकी बहुत सारे बच्चों को होता है कि हमें यही करना है, हमें एग्जाम में इतना रैंक लाना है, Absolutely. बट आपका ऑब्जेक्टिव डिफरेंट था। Yeah. तो आपने उस ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट करने के लिए आपको इस पाथ के थ्रू आना पड़ा, जो आपने इतने सारे एग्जाम्स दिए वगैरह। Absolutely. तो स्टार्टअप का आइडिया कब आया कि आपको स्टार्टअप करना है? Absolutely. So basically मैं सबको बोलना चाहूँगा, जो मेरा स्टार्टअप है फोलियम सिंसिंग,
तो हम काम करते हैं ऑप्टिकल फाइबर सेंसिंग पे। ओके ऐसा काम पूरे इंडिया में किसी ने नहीं किया है। Okay. वी आर द ओनली कंपनी डूइंग दिस एंड वी आर वर्किंग विथ रेलवेज, इसरो, टाटा स्टील, Oh, that's आर्मी, great. बेल, BRO, सो मेनी थिंग्स आर देयर एंड करेंटली वी आर वैल्यूड एट 25 CR एंड ये मेरा विजन है कि अगले साल तक मैं इसको एक यूनिकॉर्न क्रिएट करूं। ओह माय गॉड। सो तो फिर आगे भी फिर इंटरव्यू होगा, तो अभी तो हम नॉर्मल इंटरव्यू कर रहे हैं, आगे भी और बहुत बड़ा इंटरव्यू हो सकता है। एब्सोल्युटली तो बेस्ट विशेस फॉर योर न्यू स्टार्टअप। एब्सोल्युटली तो अगर कोई जे स्टूडेंट देख रहा है हाँ। जिसका जे नहीं हो पाया, एब्सोल्युटली वो कहीं पे बीटेक के लिए कहीं पे एडमिशन लिया होगा Absolutely. या बीएससी के लिए लिया होगा, तो उसको भी आईआईटी से पढ़ना है, परफेक्ट। उसके लिए क्या सजेशन रहेगा आपका? Perfect. और आपके टाइम पे आपका जेई का क्या रहा था? या अंडरस्टूड। सो सी मेरे टाइम पे फॉर JEE आई वेंट टू कोटा। I went to Kota. After 12th, I took drop, prepared rigorously. But apart from that, see, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हमको समझनी है आज के टाइम पे कि जैसे ही AI का एडवांसमेंट बढ़ रहा है, यू आर फ्रॉम एनी कॉलेज, आप Tier 1 कॉलेज से अगर नहीं भी हो, अगर आप किसी अलग कॉलेज से बीटेक कर रहे हो अपना, तो आपको ध्यान रखना है कि अपने स्किल्स इंप्रूव करते रहें आप बिल्कुल तरीके से, क्योंकि आजकल अपार्ट फ्रॉम द इकोसिस्टम, IITs को डिफरेंट क्या बनाता है, उसका इकोसिस्टम बनाता है। अपार्ट फ्रॉम दैट एवरीथिंग यू हैव अवेलेबल, ऑल द कोर्सेज, डिफरेंट कोर्सेज IITs आर लॉन्चिंग। आप फोकस करिए उस पर, अपनी स्किल्स डेवलप करिए। उसके अलावा आप ये मेक श्योर करिए कि अगर आपको IITs आना है तो यू नीड टू क्रैक गेट एग्जामिनेशन, इसीलिए इसकी वैल्यू 100 गुना हो जाती है और इसलिए टफ भी हो जाता है उतना, क्योंकि आपको पूरी इंजीनियरिंग पढ़नी है अपनी। Exactly. तो आपके ऊपर डबल प्रेशर होता है, लेकिन ये बहुत वर्थ है। इसीलिए अपनी स्किल्स डेवलप करिए, मार्केट के साथ अपने आप को ग्रो करते रहिए और पैरेलली आप एक एग्जाम की तैयारी करिए, क्योंकि इसी एग्जाम आपको सिर्फ छोटी छोटी अपॉर्चुनिटीज नहीं देता, आपके लिए एक बहुत बड़ा गेट, सही में गेट खोल देता है। मतलब अगर जे एडवांस नहीं हो पाया है तो Yeah. आपके पास ये सेकंड ऑप्शन है कि गेट एग्जाम के थ्रू आप आके एमटेक पीएचडी में एडमिशन ले सकते हो। Absolutely. एक एग्जाम और होता है जैम, उसके थ्रू आपको एमएससी में एडमिशन मिलता है, Yeah. बट गेट एग्जाम के थ्रू आपको एमटेक में एडमिशन मिलता है, और फिर उसके बाद जो प्लेसमेंट लगता है वो तो बहुत ही गजब का है, Yeah. जो आगे हम अभी डिस्कस करने वाले हैं। तो कम टू द प्लेसमेंट पॉइंट, सो हाउ इज द प्लेसमेंट दिस ईयर इन आईआईटी मद्रास? प्लेसमेंट फॉर प्लेसमेंट अगर किसी भी IIT में हम बात करें नॉर्मल, तो CS और इलेक्ट्रिकल सर्किटरी ब्रांचेस में वो हमेशा हाई रहता है। तो इट वाज रियली गुड दिस ईयर आल्सो। आई थिंक इन ऑल द IITs Madras got the highest package. Okay, so what is the highest package in IIT Madras in MTech and BTech, if you know? BTech is around 4.3 for Jane Street. 4.3 Yeah, 4.3 Okay. from James Street, and Okay. for BTech Okay. okay, for MTech it's around 1.2 CR. Around that. Okay. Yeah. So which branch it is? It's from electrical. Electrical. Yeah. In MTech. Yeah, And BTech. BTech is from CS. Yeah. Okay. तो जब आपका प्लेसमेंट हो गया तो उसके बाद कैसा लगा, और प्लेसमेंट के लिए आपने प्रिपरेशन कैसे करी थी? So see, preparation of placement again, third semester में you will get this, मतलब final semester में आपके final year में you will start preparing for that. तो बहुत important होता है कि आप सबसे पहला LinkedIn को यूज़ करें properly. Okay. जो जो आपके एलम्स हैं उनसे कनेक्ट करें आप जो वहाँ पे काम किए हैं, और उनसे समझिए एक बार कि हाउ द प्रोसेस इज एक्चुअली। सेकंड, द इंटरव्यू प्रोसेस, जो आपके राउंड होते हैं, वट एवर क्वेश्चन आर आस्किंग, टेक्निकल राउंड एंड ऑल, यू हैव टू बी वेरी मच अवेयर। आपको बहुत थॉरली प्रिपेयर करना है, बिकॉज बहुत ज़्यादा टेक्निकल क्वेश्चन वो पूछते हैं, इस पर ब्रेनस्टॉर्म करते हैं, बिकॉज अगेन द वैल्यू ऑफ दिस कंपनी इज ह्यूज, हाइएस्ट इन द वर्ल्ड। थर्ड थिंग आई वुड लाइक टू से कि प्लेसमेंट के लिए आपको बहुत ज़्यादा ध्यान का रखना है कि आपको कंटिन्यूसली एप्टीट्यूड और इस चीज़ पे आपको बहुत ज़्यादा हैंडी रहना है, बहुत ज़्यादा। मतलब आपको कोर्सेज के साथ साथ हर दिन आपको 1 घंटा देना है इस चीज़ के लिए, तभी आप इससे ग्रिस्प नहीं छोड़ेंगे। क्योंकि ऐसा होगा कि डे 0 में, बिकॉज इन डे 0 में मोस्टली वी गेट प्लेस, इलेक्ट्रिकल CS पीपल गेट प्लेस, यू गॉट प्लेस इन डे 0। ओके, सो दिस हैपेंस। बट या कमिंग बैक टू द प्लेसमेंट स्टफ, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। प्लेसमेंट होने के बाद ऑब्वियसली पार्टीज, थिंग्स एंड ऑल, एवरीथिंग गोज अराउंड, बट again I had this point of this startup thing which I had in my mind, तो उसको मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ फिलहाल, and yet I have to make a decision. Okay, so what do you think the online degree culture in IITs? जैसे अभी बहुत सारे IITs का मैंने देखा है, IIT मद्रास हो गया, जोधपुर हो गया, गांधीनगर हो गया, गुवाहाटी हो गया, पटना हो गया और मंडी हो गया, मैंने इन सब का देखा है। Absolutely. IIT बॉम्बे का भी है शायद, डिप्लोमा PG डिप्लोमा, बट वो इतना मतलब पब्लिकली उन्होंने वो नहीं कर रखा है। बाकी इन लोग का काफ़ी प्रमोशंस वगैरह वो लोग कराते रहते हैं। तो आपका क्या है, मतलब इसमें आप क्या सोचते हो, व्हाट डू यू थिंक? सी वेरी इंपॉर्टेंट, सी फर्स्ट ऑफ ऑल ये सारा चीज़ जो हो रहा है, ऑनलाइन डिग्रीज का जो कल्चर शुरू हो रहा है, दैट इज अकॉर्डिंग टू द न्यू एजुकेशन पॉलिसी, उसके अकॉर्डिंगली हो रहा है। बट हमें ये समझना पड़ेगा, मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, और ये क्लैरिटी बहुत लोगों को नहीं, यू नीड टू बी वेरी क्लियर इन दिस। एंट्रेंस एग्जामिनेशन, इन द वेरी फर्स्ट पॉइंट
बीटेक वाला एंटर करता है थ्रू जेईई एडवांस हाँ। एंड देयर इज नो एनी स्पेसिफिक कॉमन एग्जाम फॉर द ऑनलाइन डिग्रीज. सो स्टार्टिंग लेवल पे देयर इज अ ह्यूज डिफरेंशिएशन. So there is no point of comparison altogether. जो एक बंदा एग्जाम क्वालिफाई करके और एक जो बिना एग्जाम क्वालिफाई करके. Yeah, there is small qualifier exam. Yeah, obviously. This is the first thing. तो differentiation की कुछ बात ही नहीं होती है. There is a huge difference in that first thing. Yeah. Second thing is that होता क्या है कि in the online degrees what is happening? They take huge number of people. उसके बाद they filter out. वो filter करते हैं वो 4 साल के प्रोसेस में. जैसे कि ऑनलाइन में डिग्री की बात करूँ जो IIT मद्रास ऑफर कर रहा है, उसमें they filter out it. तो बहुत कम लोग पास आउट होते हैं. आई थिंक करंटली 25,000. मैंने भी सुना है कि बच्चों ने एडमिशन तो ले लिया बट लास्ट तक पहुंचते पहुंचते बहुत कम बच्चे रह पाते हैं उस कोर्स में भी. एब्सोल्युटली एग्जाम इतना टफ होता है कि वो क्रैक नहीं, क्योंकि ऑब्वियसली अगर आप जे एडवांस करके आ रहे हैं, एमटेक गेट करके आ रहे हो, तो अब उस लेवल का आपका माइंडसेट है वो एग्जाम क्वालिफाई कर पाओगे. यहाँ के जो अकेट्स के होते हैं, राइट. बट जो ऑनलाइन वाला जो बच्चे जा रहे हैं, मैंने भी सुना है कि वो लास्ट तक नहीं कर. एग्जैक्टली दिस इज द सिचुएशन. तो हो क्या रहा है ना, फर्स्ट पॉइंट इटसेल्फ जेईई एडवांस एंड गेट में लोग फिल्टर होकर ऑलरेडी आ रहे हैं. नो नीड टू डू. यहाँ पे लोग आ रहे हैं बहुत सारे, they are paying it. Not cream layer. They're not cream layer. And what happens is that वो filter out होके there are fewer lefts. First thing is this. तो there is no point of comparison. हालांकि गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव अच्छा लिया है. जिनके पास पैसा नहीं है, दो बहुत वीक बैकग्राउंड से हैं, they can have the access to recognition. Okay, तो इसमें स्कॉलरशिप भी है. Scholarships हैं, just like NPTEL and all. It is a way of giving education. Second point जो बोलना चाहूँगा इस पे, IITs को डिफरेंट क्या बनाता है, इकोसिस्टम. आप जो चीज़ कैंपस में रह के कर सकते हो यहाँ पे आप बीटेक एमटेक्स में, वो चीज़ आपको एक्सपोजर वहाँ नहीं मिलेगा. अगेन वन थिंग. तो ये जो ऑनलाइन डिग्रीज हैं ये सप्लीमेंट है, खाना नहीं है. दिस इज समथिंग लाइक दैट. सो इट इज अ सप्लीमेंट. सो इट्स मोस्टली जो पीपल ऑलरेडी बीटेक कर रहे हैं टियर 2 टियर 3 से, दे कैन यूज एट अ सप्लीमेंट. या जो जॉब्स कर रहे हैं, बिकॉज स्किल्स लाइक डेटा साइंस एंड एआई बहुत रिक्वायर्ड है. बहुत कम लोग जो फुल टाइम करते हैं इसे. अगेन आई टोल्ड द रीजन. कोई भी रिक्रूटर अगर आ रहा है, दे सी योर रिज्यूमे, तो at the first point it's very clear differentiating. कि कोई कौन एग्जाम क्लियर करके आ रहा है, that is something different. But again, क्या है, but आपके पास in addition में कुछ है, that would be great. Absolutely. So this degree is a supplement, not a food. So that is we have to make sure. But those who are doing this, all the best. Keep on upgrading your skills. So जैसा कि मैं बता दूं आपको, मैं भी AI and ML में रिसर्च कर रहा हूँ. Yeah. So what do you think the advancement and impact of AI in startup and future research? अगेन वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन जो आज हम देख रहे हैं कि AI जॉब खा गया, एवरीथिंग इज AI. बट वेट, होल्ड ऑन, थोड़ा पीछे चलते हैं. चलते हैं पीछे तो हम देखते हैं कि जब कंप्यूटर्स आए थे तो लोग डर गए थे. हमारी जॉब्स चली जाएंगी. तो हुआ क्या, जॉब्स उनकी गई जिनको कंप्यूटर नहीं आता था. एग्जैक्टली. अगर आप बोलोगे मेरे कंप्यूटर नहीं आता, आप सीखोगे नहीं, तो आपकी जॉब गई ऑटोमेटिकली. जिसने कंप्यूटर सीखा वो ग्रो किया. सेम चीज आज हो रही है AI के साथ. अगर आप AI को नहीं सीखोगे, उसको काम में लेके नहीं आओगे, तो आपकी जॉब खा लेगा. और उसको आप सीखते हो, मतलब ये पॉइंट है कि जॉब तो जाएंगी, बट जिनकी जाएंगी उनकी जाएंगी जिनको AI वगैरह नहीं आता होगा. Absolutely. AI ऐसा है कि आप उसको कैसे यूज कर सकते हो. जिनको भी, जैसे मैं अगर ML में AI ML इन केमिस्ट्री में PhD कर रहा हूँ, तो मैं को सीख रहा हूँ कि कैसे AI को हम यूज करते हैं, मशीन लर्निंग मॉडल, डीप लर्निंग मॉडल कैसे यूज करते हैं. तो आगे जाके हम कैसे उस मॉडल को रिसर्च में, साइंस में कैसे यूज कर सकते हैं. Absolutely. बट जिनको वो नहीं आता होगा, या मतलब किसी भी डिफरेंट फील्ड में भी, तो वो उनके लिए आगे जाके प्रॉब्लम होगा, बहुत प्रॉब्लमेटिक होगा. दैट इज व्हाई यू नीड टू इक्विप योरसेल्फ फ्रॉम AI. इवन एनी स्टार्टअप, एनी टेक्निकल थिंग, अगर आप नहीं करोगे तो फिर वो जो हेडलाइन चल रही है जॉब खा गई, तो प्लीज बी रेडी फॉर दैट. So what are the government support for startup in India and how it leveraged? Okay. So ये बहुत एक अच्छा क्वेश्चन किया है प्रशांत ने. See, हम वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज है कंट्री की, और स्टार्टअप बैकबोन होते हैं बिकॉज हम बहुत सारे जॉब्स क्रिएट करते हैं, वैल्यू ऐड करते हैं कंट्री के लिए. और सब के लिए पॉसिबल नहीं है कि वो क्रीम IITs में पढ़ पाएं, मद्रास, बॉम्बे, दिल्ली एंड ऑल दिस ओल्ड एनी IITs एंड IITs. सबका पॉसिबल नहीं है. बट ये एक लिमिटेशन नहीं है. बहुत सारी चीज़ हैं. फॉर एग्जांपल IITs में वी हैव सो मेनी ग्रांट्स एंड ऑल, उसके बारे में बात नहीं करूंगा मैं, लेकिन मैं बात करूंगा जो गवर्नमेंट ग्रांट्स प्रोवाइड कर रही है. So DPIIT is one of the portal in which you have to look upon. Okay. There is a Udyam portal also in which you can look upon. Okay. तो guys मैं डिस्क्रिप्शन में भी ये लिंक सारे डाल दूंगा, वो भी चेक कर सकते हो. Absolutely. तो जो आप स्टार्टअप इंडिया की वेबसाइट पे जाएंगे, इतने इनिशिएटिव प्रेजेंट्स हैं. अगर आपके पास स्मॉल आइडिया भी है आपके पास, अगर आपको उसको टेस्ट भी करना है, तो गवर्नमेंट इज गिविंग यू 10-15 लाख रुपीस, जिसकी अवेयरनेस लोगों को नहीं है. वेरी सैड टू सी दैट. बट मैंने सुना है कि ऐसा होता है कि आपको कुछ अमाउंट ऑफ सेल्स जनरेट करना होता है, तब आप स्टार्टअप इंडिया में nothing like that. ऐसा कुछ नहीं. वो सिस्टम अलग होता है. So there is a certification called DPIIT certification. Okay. वो जो स्टार्टअप रजिस्टर्ड है उनके लिए होता है.
अपार्ट फ्रॉम दैट बहुत सारी स्कीम्स अभी गवर्नमेंट ने लेके आई। आप एक वेबसाइट चेक करिएगा, प्रशांत डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देगा। तो बहुत ध्यान से देखिएगा आप, आपके पास एक स्मॉल आइडिया भी है तो गवर्नमेंट लाख रुपीज देंगे आपको उसको टेस्ट करने के लिए। आपको प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेंगे, आपको इन्वेस्टर्स आपको सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे। तो यही है हमारा विकसित भारत जो हम विजन लेके चल रहे हैं, 2047 का विजन यही है, क्रिएटिंग मोर एंटरप्रेन्योर्स, क्रिएटिंग मोर जॉब्स, और जस्ट लाइक वी ऑल आर डूइंग, वी हैव टू बी aligned in that direction. And we are proud. We are proud to be Bharatiya, proud to be Indian, and we support Make in India stuffs and we'll take it abroad. Okay. So what do you think, was the IIT worth it? Yes, obviously. See, IIT का tag ही it's always worth it. Either you are in India, you are in abroad, everything. और इंडिया में तो कुछ ज़्यादा ही। Yeah, India में it's the hype is there. It will be there because of the competition, the kind of ecosystem it provide. But most important thing जो हम समझते हैं, जो मैं बोलना चाहूँगा सभी लोगों को जो आज देख रहे हैं, अगर आप कहीं भी हैं, सबसे इम्पोर्टेंट आपका इकोसिस्टम, द काइंड ऑफ पीपल यू हैंग आउट विद, जैसे आपकी सराउंडिंग्स हैं, तो आप वैसे ही बन जाओगे। ये IITs में यूनिकॉर्न्स क्यों निकल रहे हैं इतने, क्यों ऐसा हो रहा है? बिकॉज ऑफ द mindset, like mindset people we are having here. Similarly with the group, friends group, with the family group, जहाँ भी आप हैं, इकोसिस्टम इज वेरी इंपॉर्टेंट। और कोई इस ऐसे इकोसिस्टम हमारी गवर्नमेंट क्रिएट कर रही है इंडिया में। सी एवरी डेमोक्रेटिक कंट्री में वी हैव सो मेनी ओपिनियंस, सम ऑपोजिशन विल बी देयर, समथिंग विल बी देयर, दैट इज द पार्ट एंड पार्सल। बट हमें ये समझना पड़ेगा कि हम गवर्नमेंट हमारे लिए क्या अच्छा कर रही है, हमको उसको यूटिलाइज करना पड़ेगा और उसको साथ लेते हुए हमें आगे बढ़ना होगा। इसीलिए सबका साथ सबका विकास। ओके, बहुत अच्छी बात कही आपने। तो मैं एक चीज़ पूछना चाहूँगा, जैसे IIT बॉम्बे में जितने भी रैंकर्स होते हैं मोस्टली, चाहे वो JEE के हों चाहे गेट के हों, मोस्टली यहाँ पे आते हैं। तो आप वहाँ पे पढ़ रहे थे, आपको पता होगा। तो आपकी ऑलरेडी AIR11 है, और कौन कितने रैंकर्स वहाँ पे मतलब एडमिशन लिया, कोई था मतलब? So we have all the top 100 most rankers, 100 rankers there. 11th मैं खुद हूँ। We have a rank, 25th rank is there, 27 is there, 35 is there, 36 is there. Okay, तो मतलब उनकी चॉइस है, राइट? बट यहाँ पे मोस्टली मैंने जितना जानता हूँ, it is something like that. So I think most of the top rankers they land up in Madras, Bombay, Delhi, all of these IITs, and don't go for ranks like NIRF, QS rank, because ये हमेशा top 3 में मिलेंगे आपको। तो हाँ, QS पर रैंकिंग भी आप देख सकते हो। तो इफ यू हैव टू गिव रैंकिंग इन इंडियाज IITs, तो हाउ विल यू गिव? मतलब आपकी केस में तो IIT मद्रास, आपको IIT बॉम्बे को हो गया था, एडमिशन ले लिया था, छोड़ दिया, फिर आपको IIT मद्रास गए, उसके बाद आपका नियरली 1 CR का पैकेज लगा। तो आपकी केस में तो बहुत अच्छा है। और अगर नहीं भी लगता फिर भी बहुत अच्छा ही होता, राइट? एब्सोल्युटली। बट फिर तो आप उसके अकॉर्डिंग आप क्या मतलब रैंकिंग करना अकॉर्डिंग? सी, ये कुछ सवाल है तुम्हारा रैंकिंग्स का, तो नॉर्मली जो लोग सुन रहे हैं पहली बार समझ में आ रहा है, तो रैंकिंग्स जनरली जो हम देखते हैं 2 तरीके की होती हैं। एक होती है NIRF रैंकिंग जो इंडिया देता है, जिसमें 10 साल से IIT मद्रास फर्स्ट आ रहा है। एक है QS वर्ल्ड रैंकिंग जिसमें हमेशा से IIT बॉम्बे फर्स्ट आ रहा है। तो आई थिंक ये रैंकिंग्स का कल्चर जो चीज़ें हैं, आई थिंक इसको थोड़ा साइड में रख के वी शुड अप्रिशिएट कि फॉर एग्जांपल जो CS डिपार्टमेंट है बेस्ट इन IIT बॉम्बे, इलेक्ट्रिकल वन ऑफ द बेस्ट इन मद्रास, या मैकेनिकल वन ऑफ द बेस्ट इन कानपुर। सो ऐसा है कि कुछ स्पेशलाइज्ड चीज़ें सब जगह अच्छी हैं। बट एनीवेज बहुत अच्छे से मतलब एक्सप्लेन किया। आई थिंक कोई जो आप वहां से हो तो इसीलिए आप इतना अच्छे से एक्सप्लेन कर पाए। एब्सोल्युटली। और कोई इतना अच्छे से एक्सप्लेन नहीं करता तो सीधे रैंकिंग दे देता। No. तो वन ऑफ द क्रिटिकल क्वेश्चन आई आस्क्ड, या वेरी क्रिटिकल क्वेश्चन है। प्रशांत इज वेरी गुड इन आस्किंग दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। सो यू एक्सप्लेन वेरी वेल। या तो व्हाट एडवाइस वुड यू लाइक टू गिव फ्यूचर गेट एस्पिरेंट्स? ओके, सो ऑल द फ्यूचर गेट एस्पिरेंट्स, प्लीज पहली बात लंबी सांस लो, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। कंपटीशन बहुत है, कट थ्रोट कंपटीशन है, जस्ट डोंट वरी, अपना बेस्ट दीजिए, लेक्चर्स देखिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की कॉपी हमेशा अपने साथ रखिए, सिलेबस का प्रिंट आउट हमेशा अपने पॉकेट पे रखिए। वो क्योंकि आपकी गीता है, भागवत गीता, एवरीथिंग इज दैट। एंड लास्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट, इतने टेस्ट दीजिए जब तक आप खुद शर्म से वो ना हो जाए। इतने नेगेटिव क्वेश्चंस आप रूम पे ही करिए, अपने क्लास में ही करिए कि आप जाके वहाँ बेस्ट परफॉर्म करें। यही मेरा मैसेज है। ओके, तो अगर कोई बच्चा आपसे कनेक्ट करना चाहे तो मैं आपका लिंक्डइन नीचे लगा दूंगा, यस ऑफिशियली, एंड तो आप उन्हें रिप्लाई कर दीजिएगा क्योंकि मेरी ऑडियंस तो आपको जरूर अप्रोच करेगी। डेफिनेटली कनेक्ट ऑन लिंक्डइन और इंस्टाग्राम पे भी विल बी हैविंग दिस कोलैब एंड ऑल, सो विल जस्ट सी ऑन दैट। एनीथिंग इज देयर, फील फ्री टू रीच आउट because we want all of us to grow together. People who are there, aspirants are there, जो भी हैं। So best wishes for your startup. Yeah. और मेरे जो JEE और गेट एस्पिरेंट देख रहे हैं उनकी तरफ से भी काफी सारी विशेस आपके लिए। Thank you so much.
तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। ये थी सनिध्या की कहानी। तो इसी तरह का आपको और वीडियोस देखनी तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और फॉलो फॉर मोर।